नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी का पीआर किया जाता है। जब हमारे दो जहाज, गैस वाले जहाज भारत आ चुके हैं, तो पीआर किया जा रहा है कि पीएम मोदी की विदेश नीति का कमाल है कि इजराइल और ईरान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन क्या बीजेपी सांसदों का व्यवहार भी उस तरह का है? क्या बीजेपी सांसदों को संसद में बोलते वक्त यह बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए कि हमें ईरान के साथ भी दोस्ती कायम रखनी है? एकदम ट्रोल्स वाली भाषा संसद में इस्तेमाल की जाती है। किसी सांसद को ईरान जाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी क्या जवाब देते हैं? बीजेपी सांसदों की बोलती बंद करता जवाब देते हैं। जब इजराइल की निंदा करने पर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को कहा जाता है कि आप ईरान चले जाओ, तो उसके बाद क्या सीन होता है संसद में और बीजेपी सांसदों की फुहरता पर क्या जवाब देते हैं आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, जरा देखिए। But before I come to the railway grants, I will take 10-15 seconds to express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the killing of innocent. No, please. Please confine to the bed. More than 150 girls, kids were killed in the school. I express my condolences to the people of Iran, to the peace-loving people, the just people all around the world, and I condemn the regime, no, please. Zionist regime of Israel. I condemn this act. I condemn the Zionist regime of Israel for their terrorist act, aggression in Iran. Please. This is Rohullah this is इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? No, please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ। Please. One second, please, my dear. This is there is no problem in criticizing everything. Please. If you are speaking on the railway budget, you can continue. Otherwise, you cannot go like this. No. We are discussing on demand number 85. That is the railway demands. This is nothing to do with the Iran issue. This is nothing to do with the international issue. Please don't discuss the extraneous issues than this. Please. And nothing will going on record also. Please. No. Every submission. ईरान क्यों चला जाऊं? मैं ईरान क्यों चला जाऊं? No, please. Don't answer to them. You please address the chair. You please, if you want to speak on the budget, you can speak. No. You please address me. I will control the house. Please. No. You please address the house. If you are speaking on the railway budget, you can speak. Otherwise, it will not be permitted. Please. And you can make the submission. You can make the submission in 0 hour. You can make so many other rules are there. You can bring the notice of the house. There is no problem. But this is purely the railway budget discussion. Nothing to do with the Iran issue. Please. All right. Thank you, sir. Just to put on record, the people, those who wanted to send me to Iran. No. Again, you are going back. No, nothing will going on. ये आपका सपना है. Except the demand. No. You please. This is not going on record. We are all concerned about the issue, but this is not the way by which the issue has to be brought before the House. Please. बाकी उनका ख्वाब है जो हमें या कभी पाकिस्तान या कभी ईरान भेजना चाहते हैं। मैं हैदर करार की नस्ल में से हूँ, जहाँ पे हक है वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। श्री इमरान मसूद जी, No, you are not abiding the ruling of the state. No, please. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने बीजेपी सांसदों की बोलती बंद करता जवाब दे दिया। हालांकि बोलती बंद होती नहीं है जब सांसद ट्रोल्स की तरह व्यवहार करते हैं। समझ नहीं आया कि अगर इजराइल की निंदा की गई, अगर हमले की निंदा की गई, बच्चों के मारे जाने को लेकर अगर सांत्वना प्रकट की गई, शोक प्रकट किया गया, तो बीजेपी सांसदों को इसमें बुरा मानने की जरूरत क्या थी? कोई बीजेपी की निंदा तो कर नहीं रहे थे, इजराइल की निंदा की तो उनका अपना व्यक्तिगत मत है। हाँ, स्पीकर टोक सकते थे, पीठासीन स्पीकर ने टोका कि आपको रेलवे बजट पर बोलना चाहिए। ईरान इजराइल का फिलहाल विषय नहीं है, चलो इतना समझ फिर भी आता है। लेकिन बीजेपी सांसद इस हद तक उतर आए कि ईरान जाने की सलाह देने लगे। एकदम ट्रोल्स वाली भाषा जो ये सवाल उठाती है कि देश के सांसदों का भी सत्ताधारी सांसद कितना सम्मान करते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।